Hello guys, good morning to all. Guys, अब next in the thermodynamics we are going to do entropy. Okay, uh, guys, हमें पता है कि जो entropy होता है that's the degree of randomness. We will later see कि entropy के बारे में हम लोग we will later analyze that. First of all, let us first of all see a cycle. Cycle पे हम लोग देखते हैं कि we will try to know the nature of the process. ठीक है, and before we know about the entropy. Okay, so क्या हम करते हैं कि let us first of all consider a cycle. ठीक, ये हमारे पास एक cycle है with the three processes. One, it goes from process 1 to 2, then 2 to 3, and then 3 to 1. If we see here this entropy change or dou q by dou t, ठीक है, from 1 to 2, then 2 to 3, and 3 to 1. Guys, in the previous lecture मैंने ये कहा mention किया कि जो classes inequality हैं, what it says it's about the entropy. It says the line integral of the cyclic integral of the dou q by t is less than or equal to 0, and it helps us to tell जो ये वाला factor है, ये वाली term है, ये वाली function यहाँ पे है, dou q by dou q by t, it's no doubt entropy, ठीक है, but here it's about classes inequality tells us that the line integral of this factor is less than or equal to 0, and while it is equal to 0 it will be the reversible cycle, and if it is less than 0, then it will be a irreversible cycle, ठीक है. So this very factor, this tells us about the nature of the cycle. We are actually more uh, we are looking at the cycles as of now, ठीक है. For the process we later look into it. अब ये बात है कि keep this very thing in the mind that the classes जो statement है, it is not for the process, it is for the cycle. Okay, whether and the cycle whatsoever it is, whether it is the uh, reversible or irreversible, ठीक है. I'm moving ahead. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रोसेस के लिए हम लोग एंट्रोपी ही यूज करते हैं, एंड एंट्रोपी इज अ वेरी गुड फैक्टर जो कि हमें प्रोसेस का नेचर बताती है. बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द साइकिल. सो हमारे पास एक साइकिल है एज आई मेंशन ऑलरेडी, ठीक है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ द, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि जो एंट्रोपी चेंज है यानी कि डो क्यू बाई डो टी कैसे जो है इन द डिफरेंट प्रोसेसेस में वो वेरी करती है या वो है, ठीक है. So we can say here that the cyclic integral जो है that's equal to the summation of all these things, ठीक है. अब ये भी है, अब ये भी दिमाग में रखना है कि अगर if the summation of all these functions is equal to 0, then it will be the reversible cycle, or for the reversible cycle this whole factor has to be equal to the 0, and for the irreversible cycle it should be negative, and for the impossible kind of a cycle it has to be the positive. Okay, here it should be the negative and here it should be the positive. Okay, now हमारे पास एक रिवर्सिबल साइकिल ही है. now let us see कि कैसे ये रिवर्सिबल साइकिल में इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है. we have to see for the reversible cycle it is equal to 0. now let us see how is it. Okay, now moving ahead, let us consider a reversible cycle working between the temperature limits as a T1 and T2. हमारे पास दो ये heat reservoirs हैं, ठीक है. From ये जो heat engine है, it is taking the heat Q1. Q1 is the heat supplied and Q2 is the heat rejected. Here if we see integral of their dou Q by T, ठीक है, इसका, ठीक, that will be obviously equal to the Q1, क्योंकि dou Q की जगह पे क्या है Q1, ठीक है, Q1 है, और टेम्परेचर क्या है डिवाइड बाई T1, ठीक. ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे, ठीक, क्योंकि इसमें दो स्टेजेस हैं, पहले पहले हीट यहाँ से यहाँ तक, फिर हीट यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं, ठीक है. ये हमारे पास एक साइकिल है, एंड देन फ्रॉम फॉर द साइकिल इफ वी सी हियर, ओके, हमारे पास ये दो स्टेजेस हैं इसमें, ठीक है. ओके, फर्स्ट इट इज फ्रॉम 1 to 2 एंड देन बैक टू 2 to 1, ऐसे 1 एंड दिस इज 2, ठीक है.
लाइक दिस। ओके, अब जब हम जाते हैं 1 to 2, ठीक, एट दैट टाइम वी विल सी जो हीट जो है, जो एंट्रोपी है, वी मेंशन इट बाय द Q1 बाय T1, एंड व्हेन वी सी अबाउट द जो है फ्रॉम 2 to 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तब उस समय जो हम वी हैव टू सी द हीट रिजेक्टेड, दैट इज माइनस Q2, क्योंकि ये पॉजिटिव हीट है। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन वही है, पॉजिटिव बिकॉज द हीट इज गिवन and then negative because the heat is rejected. Okay, I'm going ahead. So it becomes like this, Q1 by T1 minus Q2 by T2. Okay, अब ये भी पता है, इससे पहले मैंने मेंशन किया कि for the reversible cycle we can write that the Q1 by Q2 is equal to the T1 by T2, है कि नहीं? क्यों क्यों हम कहते हैं Q1? Because Q1, as I already mentioned, Q1 by Q2 यहाँ पे is equal to the phi of T1 divided by phi of T2. ओके, और मैंने ये भी मेंशन किया कि जो फॉर द रिवर्सिबल साइकिल जो phi of T1 है, that's equal to the T1, and phi of T2 is equal to T2. So we can say that the Q1 by Q2 is equal to the T1 by T2. ये तो in the previous lecture में मैंने already mention किया, ठीक है? If you are not getting my points, if you are not able to understand things, then kindly go through the previous जो lectures हैं, उनमें मैंने continuity में मैंने जो है ये चीजें discuss की हैं, and only then we will be you people will be able to understand the things here, ठीक है? तो फॉर द रिवर्सिबल साइकिल इट इज अलाउएबल कि हम लिख सकते हैं कि Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, but for the irreversible cycle it's not possible, ठीक है? Keeping this in the mind, we can write that क्या अगर हम इस T1 को यहाँ लाएं और इस Q2 को ऊपर लेके जाए, then it will be Q1 by Q2 is equal to Q2 by Q1 by T1 is equal to Q2 by T2, and putting the values in this previous, and then what will happen? Then this factor will be nullified and it will be equal to the 0. That is why we see for the reversible cycle, the cyclic integral of the dou q by t is equal to 0. Here you will see that it is cancel out, okay, the two factors are cancel out, and then we will get that the dou q by t is equal to 0. Okay, moving ahead. Now for the irreversible cycle, अगर हम देखेंगे for irreversible cycle में we are saying it has to be negative. Now let us see how is it. Now अब हमारे पास क्या है, we are considering the two heat engines यहाँ से, ठीक है? तो ये T1 है, दोनों एक ही टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं, ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, ठीक है? ये A है, ये B है, ठीक? अब यहाँ से जो है हीट सप्लाई दोनों को एक जैसी आ रही है, ठीक? एंड दोनों जो है डिफरेंट वर्क्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? और ये इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन है, ये रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन है। व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट, नाउ एज पर द कार्नोट थ्योरम, ठीक है, and the temperature limit is same as per the Carnot theorem, क्या कहती है? Carnot theorem कहती है कि जो रिवर्सिबल की वर्क है वो ऑलवेज होगी ग्रेटर देन द वर्क टू, या रिवर्सिबल की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी हमेशा इरिवर्सिबल से, ठीक है? देन वी कैन राइट हियर इट इज ऑलवेज द वर्क रिवर्सिबल इज ऑलवेज मैक्सिमम and then the work irreversible. Now here, so what we are going to write here, this is the dq by t, it is we are working on the क्योंकि हमने देखना है for the first of all the irreversible cycle में, जबकि हम लोग again saying for the irreversible cycle we will go first of all from 1 to 2 and then from 2 to 1, okay, from 2 to 1, okay, from 1 to 2 ये इस साइकिल में, और then from 2 to 1 in this direction, ठीक? जब हम ये लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट इज Q1 by T इरिवर्सिबल, ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है तो प्लस Q1, Q2 by T2 इरिवर्सिबल, वो भी माइनस में, क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है। आल्सो ये भी हमें पता है कि जो क्या कहते हैं इसको, Q1 by T1 इरिवर्सिबल है वो बराबर है Q1 by T1 रिवर्सिबल के, क्योंकि ये दोनों बराबर है कि नहीं? क्योंकि टेम्परेचर सेम ही है ना। अब यहाँ तक तो दोनों में सेम ही है। अब ये
डिपेंड करता है कि जो इंजन की एफिशिएंसी, मतलब कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ के इसके बाद जो है चेंजेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल, बट यहाँ तक तो फैक्टर सेम ही है ना। तो आई कैन से दैट फ्रॉम 1 to 2 यहाँ पे भी 1 to 2 है और यहाँ पे भी 1 to 2 है। इन बोथ द केसेस द फैक्टर्स आर सेम, यानी कि Q1/T1 irreversible is equal to the Q1/T1 reversible, ठीक है। सो वी कैन से दैट क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं Q1/T1 इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल से। देन आई कैन राइट डो Q/T इज इक्वल टू दी Q1/T1 रिवर्सिबल, इससे पहले था ये इरिवर्सिबल, प्लस माइनस Q Q2/T2 irreversible. Now moving ahead, also ये भी हमें पता है कि जो for the reversible process Q1/T1 reversible जो है that's equal to Q2/T2 reversible, क्योंकि ये हमने इससे पहले ही कह दिया, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे for the reversible cycle क्या हम लिख सकते हैं Q1/T1 reversible माइन इज इक्वल टू क्यों, ये रिवर्सिबल ही है और ये दोनों रिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल पे का हम कह रहे हैं Q1/T1 रिवर्सिबल इज इक्वल टू Q2/T2 रिवर्सिबल। तो हम वी कैन रिप्लेस दिस Q1/T1 रिवर्सिबल बाय द Q2/T2 रिवर्सिबल। तो क्या बनेगा फिर, जो ये वाली टर्म है, यानी कि देखो इससे पहले हमारे पास ये थी, ये इक्वेशन थी, देन वी चेंज इट कन्वर्टेड इट इनटू दिस, यानी कि हमने इरिवर्सिबल वाला फैक्टर जो है वो रिमूव किया बाय द रिवर्सिबल फैक्टर से, तो फिर हमें बनी ये वाली इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इरिवर्सिबल वाला ये जो रिवर्सिबल वाला ये है Q1/Q2, इसको रिप्लेस करते हैं Q2/T2, ठीक है, एंड देन द इक्वेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्या हमें आ गई, द इंटीग्रल ऑफ द Q/T इज इक्वल टू Q2/T2 रिवर्सिबल माइनस Q2/T2 इरिवर्सिबल। ओके गाइस, तो हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे दोनों है, अब देखो चाहे टेम्परेचर रिवर्सिबल का हो या इरिवर्सिबल का हो, दोनों एक ही है, ठीक है। सो नाउ वी कैन सेग्रीगेट दिस टेम्परेचर फ्रॉम बोथ, ठीक है। देन इट विल बी लाइक दिस, Q2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q2 रिवर्सिबल माइनस Q2 इरिवर्सिबल डिवाइड बाई T2। ओके, नाउ अब हमें पता है, मैं अगेन आई हैव ड्रॉ द डायग्राम हियर, ठीक है। कार्नोट ने हमें क्या कहा कि जो थर्मल एफिशिएंसी है, थर्मल एफिशिएंसी फॉर द रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल फॉर द टू इंजन्स वर्किंग अंडर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू द W2 डिवाइडेड बाई Q2, W2 डिवाइडेड बाई सॉरी W2 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है, क्योंकि ये हम मान रहे फर्स्ट इंजन, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी दैट्स इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। देन वहां पे क्या होगा, अगर हम Q1 कट अप करेंगे देन वी विल गेट द W2 इज ग्रेटर देन द W1 एज पर द किसके हिसाब से, ये कौन कह रहा है कि कार्नोट के हिसाब से हमें ये मिल रहा है कि जो W2 है ये ग्रेटर देन है W1 से। अब ये है कि देखो, अब यहां से तो सेम ही आया, ठीक है। अब जब ये ग्रेटर देन है दैट विल शो दैट कि ये छोटा है, क्योंकि हीट रिजेक्शन सॉरी ये ग्रेटर देन है, ये वाली टर्म ये ग्रेटर देन है दिस से, इट मीन इज दैट कि अगर ये ग्रेटर है दैट मीन इज दैट कि जितना ये ज्यादा होगा तो हीट रिजेक्शन उतनी कम होगी, जितना ये कम होगा हीट रिजेक्शन उतनी ज्यादा होगी। दिस विल शो दैट कि जो रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन है Q2 है दैट इज लेस देन द इरिवर्सिबल से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे Q2 रिवर्सिबल इज लेस देन द Q2 इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, विल गो बैक टू दिस, ठीक है। यहाँ पे अब जब Q2 रिवर्सिबल कम है और Q2 इरिवर्सिबल ज्यादा है दैट विल शो दैट इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। दिस मीन दैट जो ये फैक्टर है दैट इज लेस देन 0। तो आ गया हमें फॉर द इरिवर्सिबल साइकिल